A very good morning to all my dear students. Today we are going to start lecture 4 of the same chapter India, Pakistan and China, a comparison. We are going to start with the topic sectoral development or growth. You know we have 3 sectors, already we know this in detail. One is a primary sector, other is a secondary sector, third one is a tertiary sector. Primary sector is the sector which deals with mainly the exploitation of natural resources, providing the raw material for the industries, agriculture, fisheries, mining, and all the agriculture and allied activities come under this category. Second is a industrial sector, also called manufacturing sector, which is related to transformation, transforming earth into bricks, transforming the wood into furniture, transforming the wheat into wheat flour, transforming the wheat flour into breads and biscuits, and so many examples. Third sector is most important, which is you can say providing the services to both these. And this sector is called service sector or tertiary sector. It includes the services like banking services, insurance services, education services, health services, communication services. So these all are very important for just maintaining the primary and secondary sector. So here we are going to study the sectoral development. Occupation wise, an economy is classified into primary, secondary and tertiary sectors, as I have explained it right now. These 3 sectors are also known as agriculture sector, industrial sector, service sector. In the sectoral development, we will study 2 things. One, sectoral contribution to the GDP. First we will try to understand this. Second, rates of growth of the sectoral contribution to the GDP in terms of percentage. So let's start the first one, sectoral contribution to the GDP. So the relative contribution of the sectors to the GDP is an indication of the level of development of an economy. कितना कितना कौन सा सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये डिटरमिन करता है हमारी इकोनॉमी कैसी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बहुत सिंपल हिंदी में समझा रहा हूं, जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की स्टेज की तरफ जाएगी तो वहाँ जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और ज़्यादा जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। देखो वो यही कह रहे हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द मोर डेवलप्ड अ कंट्री इज, मोर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन agricultural sectors to the GDP. It is shown as below. अब हम ये स्केड्यूल या शेड्यूल या टेबल देखेंगे, वैल्यू एडेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2014-15, कितनी कितनी वैल्यू किस किस ने ऐड की जीडीपी में। एग्रीकल्चर, पहले हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर 17%, इंडस्ट्रीज 30%, सर्विसेज 53%। क्लियर हो रहा है हमारे सामने। इसका मतलब एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कम है, जबकि सर्विसेज में और इंडस्ट्रीज में दोनों मिला के 83%। तो बात वही हो गई, इकोनॉमी अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ बढ़ रही है। सेम अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी 25% एग्रीकल्चर, 21% इंडस्ट्रीज, 54% सर्विसेज, यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो 75% नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर।
चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एग्रीकल्चर ओनली 9%, 43% इंडस्ट्रीज एंड 48% सर्विसेज, मतलब 91%। तो वही बात जो मैंने अभी बताई वो हम यहां देखेंगे। फर्स्ट, contribution of agriculture to the GDP in the three countries clearly indicates greater importance of non-agricultural sectors. This shows that the three countries are on the path of development and rightly classified as developing countries, विकासशील देश, जो विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड बात अभी वो कर रहा है इसमें, द सर्विस सेक्टर इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। देखो तीनों में ही सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इन ऑल द थ्री कंट्रीज अलोंग विद द वर्कफोर्स। अब ये वर्कफोर्स की बात के लिए हम ये वाला शेड्यूल पढ़ेंगे, ये शेड्यूल नहीं। along with कहता है the workforce also shifts from agricultural to non-agricultural occupations, particularly the services. The share of the workforce in the service sector of India, Pakistan and China, जो कि पहले 1980 का डेटा बता रहा है, was 17% इंडिया का शेयर था, 12% पाकिस्तान का एंड 27% किसका था शेयर ऑफ चाइना। अब क्या हो गया, हैज इंक्रीज्ड टू 29%। इंडिया का पहले 17 था, अब हो गया 29%। और उसके बाद पाकिस्तान 12% से 34% और चाइना 27 से 43%। तो देखो वो यही बता रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन परसेंटेज, इंडिया 50, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज 21, सर्विसेज 29, पाकिस्तान 43, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज 23, सर्विसेज 34 एंड चाइना 28 एग्रीकल्चर 29 इंडस्ट्रीज 43 सर्विसेज। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स, ये हमने अभी पढ़ लिया। अब हम करते हैं इसके बाद, ये तो हमारा फर्स्ट जो सेक्टरल डेवलपमेंट जो कंट्रीब्यूशन था हमारा जीडीपी का, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड जो हमने इसमें पढ़ना है, रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। रेट्स ऑफ जो ग्रोथ है सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। देखो अब बात करते हैं पहले कंट्री, फिर हम इसमें लेंगे 1980 टू 90 और कंपेयर करेंगे 2011 टू 15। ध्यान से देखो इसको, इंडिया 3.1 जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का 3.1 और इंडस्ट्रीज में 7.4, सर्विस सेक्टर 6.9। ये बात कर रहे हैं 80 टू 90 की, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2011 टू 15 के अंदर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का शेयर कम हो गया, इंडस्ट्रीज का शेयर भी कम हो गया, लेकिन सर्विस सेक्टर का शेयर देखो बढ़ रहा है 6.9 से 8.4। ये है रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एग्रीकल्चर 3.1 था हमारा, उनका 4, इंडस्ट्रीज 7.7, सर्विसेज 6.8, नियर अबाउट हमसे बल्कि ज़्यादा ही रहा, जो कि अब कम हो गया। एग्रीकल्चर 2.7, नो डाउट बेटर देन अस। इंडस्ट्रीज में हमसे बहुत पीछे चले गए, 3.5 हमारा 5 है, और सर्विस सेक्टर भी उनका कम हो गया 6.8 से 4.4। चाइना की बात करते हैं 5.9 एग्रीकल्चर, 10.8 इंडस्ट्रीज, ये हम बात कर रहे हैं 80 टू 90 की, सर्विसेज 13.5, जो कि 2011 टू 15 में कितना हो गया 4.1, 8.1 और 8.4, तीनों में ही शेयर उसका कम हो गया। सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है जिसका सर्विस सेक्टर में शेयर इंक्रीज हुआ है। अभी हम यही चीज यहां समझेंगे, एक बार ध्यान से अब सुनना, आपको सारा समझ आ जाएगा। इट रिवील्स द फॉलोइंग, ये हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर
in comparison to the other sector is the highest in all the three countries. देख ही रहे हैं सर्विस सेक्टर जो है कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स सबका ज़्यादा है. देखो सर्विस सेक्टर का शेयर बहुत ज़्यादा है. इट इज़ मच लोअर इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना का तो दोनों का 8.4 है, पाकिस्तान का कम है अगर हम बात करते हैं 2011 टू 15. फिर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन कंपैरिजन टू द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज लोएस्ट इन ऑल द कंट्रीज. जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो कम है, आप देख लो एग्रीकल्चर सेक्टर, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है. तो ये हमारे पास दूसरा फैक्ट रिवील हो रहा है इसको देखकर. इट इज़ लोअर इन इंडिया. देखो इंडिया में ये सबसे लोअर है एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान. इंडिया में 2.3 है, चाइना और पाकिस्तान में 2.7 एंड 4.1. फिर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हाईएस्ट इन चाइना, दिख रहा है हमें, हाईएस्ट इन चाइना. एंड एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज वेरी लो इन पाकिस्तान. देखो सबसे कम है पाकिस्तान में 3.4. अब बात करते हैं सेक्टोरल रेट्स ऑफ ग्रोथ इन 2011 टू 15. अगर उनकी बात करें एज कंपेयर टू 80 टू 90 हैव डिक्लाइंड इन ऑल द थ्री कंट्रीज. तीनों में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी मैंने बताया था ओनली एक्सेप्शन इज इंडियाज सर्विस सेक्टर रेट ऑफ ग्रोथ विच हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.9 टू 8.4. इसको दो बार जब आप देखोगे, आपके सामने मैंने सारा इसलिए रख दिया, आप इसको देखोगे, कंपेयर करोगे, 2-3 बार लेक्चर को सुनोगे, आपको सारा डेटा समझ आ जाएगा. लेकिन फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, समझ तभी आएगा जब समझने की कोशिश करोगे. कोई मैजिक स्टिक नहीं है जो इन फिगर्स को लर्न करवा देगी. लॉजिकली सिस्टेमेटिकली नोट्स बनाओगे, लिखोगे तो जल्दी समझ आएगा. जितनी मर्जी बार देख लो, जितनी मर्जी बार रट लो, कुछ समझ नहीं आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक योर नोट्स साइमल्टेनियसली विद द लेक्चर at the same time. Our next lecture is always the discussion of the previous lecture which we are adopting from after the midterm, and I want that it should be overall active participation from all of you. Hope you all will do the best to get the best. God bless you all.